नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं आपके साथ सोनी शर्मा और कैमरे पर मेरे साथ है शुभम अग्रवाल। अभी बात करें सिल्लीगुड़ी की, तो जब से नई सरकार सत्ता में आई है बीजेपी की, तब से जो ट्रैफिक है उसको लेकर जो ट्रैफिक पुलिस है वो काफ़ी सक्रिय है और रोज नए नए नियम लागू किए जा रहे हैं ताकि अब शहरवासी जो है वो ट्रैफिक में सहूलियत पा सके, ट्रैफिक जाम ना हो। और इसका प्रभाव भी देखा जा रहा है कि बहुत से इलाके में अब जो ट्रैफिक है वो जाम नहीं हो रहा है और सड़कें भी है जो खुली खुली नजर आ रही है। लेकिन साइड इफेक्ट कहते हैं कि जब कोई चीज़ अच्छी चीज़ होती है तो उसके साथ कुछ बुरा भी होता है। तो ऐसे में आपने देखा होगा कि जो टोटो चालक थे या उनसे संबंध और जो है वो काफ़ी परेशानी में, उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। कल भी आपने देखा था कई जगह टोटो चालकों ने विरोध किया था। लेकिन यहाँ मैं एक और स्थिति लेके आया हूँ कि टोटो चालक में और ऑटो चालक में कुछ अंतर है। ऑटो बंद नहीं किए गए हैं, टोटो बंद किए गए हैं, लेकिन इसमें दोनों के बीच में एक है ई ऑटो, जिससे कि सरकार द्वारा इनकी माने तो मान्यता प्राप्त है। और मैं दिखाऊंगा, ये इसे ई ऑटो बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यह नंबरिंग भी दी गई है, ये ग्रीन दिया गया है, इसका मतलब ये ठीक है। और ये भी ऑटो है, टोटो नहीं है। लेकिन इनका कहना है, ये जो सभी लोग मेरे साथ जुड़े हैं ई ऑटो चालक, यहाँ पर जो है 74 शायद मेंबर है, इनका कहना है कि हमें मान्यता मिली हुई है, हमें रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, हमारी गाड़ी का 33 नंबर भी है, इंजन नंबर भी है, सरकार के द्वारा भी मान्यता है। इसके बावजूद इन्हें रोका जा रहा है। तो ये जो 73-74 जो लोग हैं, इन्हें यहाँ पर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उसी गुहार को लेकर ये पहुँचे हैं ताकि मीडिया में ये मामला है। इसके पहले इन्होंने बताया है कि इन्होंने ट्रैफिक डीसी जो है उनको भी ज्ञापन दिया और साथ ही अभी कुछ देर पहले ही ये भारतीय जनता पार्टी की जो जिला अध्यक्ष है उनको भी ये एक लेटर देकर आए हैं। बाकी पूरी समस्या क्या है, क्या इनके मापदंड है, उन पर भी हम बातें करते हैं। तो इनके प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। सर ये हाँ सर, क्या नाम? আমরা নন্দন দত্ত আছে, নন্দন দত্ত। হ্যাঁ, প্রবলেমটা কি আপনাদের? কি প্রবলেমটা হচ্ছে আমাদের যে এই অটো আমাদের টোটো বলে আমাদেরকে এদিক দিয়ে ঘোরানো হচ্ছে, এটা খুবই আমাদের অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। এর জন্য আমাদের টোটোকেই ঘোরাচ্ছে, আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু টোটোর মধ্যে আমরা পড়ছি না। আমরা হলাম ই অটো, আমরা সম্পূর্ণ ভেহিকেলস, আমরা ইভি মানে ইলেকট্রিক ভেহিকেলস। আমাদের কমার্শিয়াল গাড়ি, আমাদের রিজার্ভ গাড়ি পারমিট, আমাদের অনেকে পেট্রোল রিপ্লেস করা গাড়ি আছে আমাদের। আমরা জায়গায় আপনাদেরকে রিপ্লেস করেছি আমরা গাড়িটা। যারা আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলছে যে পেট্রোলের জায়গায় আপনার ইলেকট্রিক রিপ্লেস করার জন্য, এরকম আমরা রিপ্লেস করছি। ধোঁয়াবিহীন গাড়ি, পলিউশন বিহীন গাড়ি শহরে চলছে এটা, কিন্তু আমাদেরকে ঘোরা দিলে অসুবিধা হচ্ছে। আমাদের রেজিস্ট্রেশন নম্বরও আছে, রেজিস্টার আমাদের পারমিট আছে, সব আছে আমাদের। রোড ট্যাক্সও লাগে, ইন্স্যুরেন্স সব লাগে, সব কমার্শিয়াল একদম সবকিছু আছে, সবকিছু আছে আমাদের। তাহলে কি করে ঢুকতে দিচ্ছেন আপনাদেরকে? এখন কি করবো, কেন ঢুকতে দিচ্ছে না আমাদের? ওনারা আমরা যা কথা বললাম, আমি সঞ্জয় ভৌমিক। তো আমরা ডিসিপির সঙ্গে যে কথা বললাম, তো ওনাদের একটা বক্তব্য হচ্ছে হলো, ওনারা যা কথা শুনে মনে হলো ওরা কনফিউজড। ওনারা ই অটো আর টোটোর মধ্যে ভীষণ রকম কনফিউজড, মানে ই অটো বুঝতে পারছেন না ওরা। আমরা যখন ওদেরকে ক্যাটাগরি, গাড়ির ক্লাসিফিকেশান, গাড়ির মডেল, গাড়ির মেক ওনাদের যখন বোঝালাম, তখন ওরা বলছেন আচ্ছা এরকম নাকি। আমরা বললাম এরকমই স্যার। বলছে আমাদের উপরে তো ইনস্ট্রাকশন আছে টোটো। আমরা স্যার টোটোকে বলছেন, আমরা তো বলছি না। বলছে আপনাদের কি সমস্যা হচ্ছে, আপনারা সাইড লেন দিয়েছে। আমরা স্যার একজনকে বলুন, আমাদের ধরুন কেউ আমাদের যেসব র্যাপিডোতে ভাড়া মারছে, কেউ বাচ্চা নিয়ে আছে, গাড়ির লাগেজ নিয়ে আছে, এবার তাকে কি করে বলছে আপনি হেরিটেজের পিছনে গিয়ে উঠান। ওরা ওই বড় রাস্তা থেকে হেরিটেজের পিছনে যেতে পারবে? সম্ভব এটা? তা আমরা তো জাস্ট কিছু প্যাসেঞ্জারদের ওখান থেকে ওঠা নিয়ে চলে যাওয়া। আমাদের তো 3+1 তো বন্ধ নাই, অটো তো বন্ধ নাই, সেটাই তো আমরা সেই কথাটাই বলছি। বন্ধ করে দিচ্ছে গ্রিন নাম্বার, মানে 3 টাকা গ্রিন নাম্বার দেখলেই মানে টোটো আছে। সেটাই ওরা ধরে। আপনারা কত মেম্বার, কত আছে ই অটো? আমাদের খুব জোরে 57টা হবে গাড়ি, খুব 73 নাম্বার, 73 এফ এন্ড জি যেটা আছে আমাদের। আচ্ছা, ওটা 57 এরকম আশপাশ এরকম হবে। আমাদের শহরে চলার জন্য দিয়েছে, যাতে শহরে পলিউশন না হয়, সেই জন্য আমাদের এই গাড়িগুলো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে দিয়েছে। এই নোটিফিকেশন দিয়ে আমরা গাড়িটা কিনছি। এই নোটিফিকেশন আছে আমার কাছে, দেখুন সেম নোটিফিকেশন আমাদের গাড়িটা কোম্পানি থেকে দিয়েছে। আপনাদের কি ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে? হ্যাঁ, ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে, সবই আছে। হ্যাঁ আছে, অবশ্যই আছে আমাদের। ड्राइविंग लाइसेंस भी है,
अच्छा ये है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के, हम लोग कागज है सब। तो देखिए सबका ड्राइविंग लाइसेंस भी है यहाँ पर और ये सब ई ऑटो लिखा है, ई ऑटो लिखा है ऑपल लेटर देखिए, अच्छा ये ऑटो लिखा है लिखा है देखिए हाँ 3+1 लिखा है। हम लोग तो सरकार के मान के हम लोग चल रहे हैं ना, अभी हम लोग को बोले ये गलत है तो तो आप लोग अपना सब डॉक्यूमेंट्स जो है वो डीसी साहब को देके आए क्या? एक्चुअली डीसी साहब ने हम लोग जब डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहे, वही बहुत अचंभा का बात है, हम लोग ने जब उनको पेपर्स सबमिट करने की कोशिश किया गाड़ी देने के समय में ही हैज कैटेगोरिकली डिनाइड, वो बोल रहा है कोई पेपर्स नहीं देखना है, वो कैटेगोरिकली रिफ्यूज कर रहा है, कोई पेपर नहीं देखना है, मुंह से बात करना है, पेपर्स नहीं देखना है। अच्छा वो सिर्फ इतना बोला कि हम लोगों पर इंस्ट्रक्शन है रोकने के लिए। तो हम बोला सर आपको तो टोटो को रोकने के लिए इंस्ट्रक्शन है, वाई ही ऑटो, हम लोगों का गलती क्या है? तो बोल रहे हम कुछ नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस द मिनिस्टर कम्स। टोटो वाले के पास में तो शायद ये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता तो होता भी नहीं होगा, होता ही नहीं, टोटो को कुछ नहीं है, तो भगवान जानता है। पेपर भी नहीं होता है, नहीं होता है पेपर, हम लोग का पास सब पेपर है, हम लोग का इंश्योरेंस टैक्स फिटनेस सभी है, एवरीथिंग। परमिट ऑल्सो, रोड में चलने के लिए परमिट होता है ना, वो भी तो है, रोड टैक्स भी देते हैं। हाँ, सब देता है सब। तो देखिए भाई यहाँ पर स्थिति आप देख रहे हैं, ये लोग जो साथ हैं इनका कहना है कि हम सारी जो क्राइटेरिया वो हम सारी जो चीजें जरूरत में होती है वो हम सारी चीजें दे रहे हैं, लाइसेंस हमारे पास है, रोड टैक्स हम दे रहे हैं, मान्यता हमें मिली हुई है, उसके बावजूद क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा हुआ है जो सिलीगुड़ी सब डिवीजन परमिट है हमारा, ये किसकी तरफ से है? ठीक है, ये हमारा ये गाड़ी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखे डिस्ट्रिक्ट में आरटीओ से है। अच्छा ये मान्यता मिला हुआ कि आपको यहाँ पर हाँ, यहाँ पर हमारा सिलीगुड़ी हिलकार्ड रोड, विधान रोड, वर्धमान रोड, सिलीगुड़ी सब डिवीजन ये सब में तो आएगा ना ये। तो सवाल यही उठता है जब आप लोग के पास में सब वैलिड डॉक्यूमेंट्स है तो आप लोग प्रशासन से जाके मिल रहे हैं, तो प्रशासन क्या बोल रहा है? टोटो की बोल रहे हैं, हम तो यही समझ में नहीं आ रहा, वो लोग पेपर भी तो नहीं देख, पेपर तो नहीं देख रहे, पेपर ही तो वो लोग तो पेपर ही नहीं देखना चाहते हैं सर, पेपर नहीं देखना नहीं देखना, बोल रहे मुंह से बात कीजिए। आरटीओ बोल रहा है ये ऑटो है, तो अभी ये बोल रहे टोटो है, कैसे हम लोग टैक्स भी दे रहे हैं आप लोग? ये हम लोग का इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस है, एक गाड़ी का फिटनेस पेपर है, जो भी होना चाहिए सब है, सब है हम लोग। एक कॉमर्शियल व्हीकल्स में जो पेपर सब कुछ, सब पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि पोल्यूशन सर्टिफिकेट हम लोग होता नहीं, होगा नहीं, वही छोड़ के सब कुछ पोल्यूशन है। की जरूरत ही नहीं है, बाकी जितने भी मापदंड है वो इनके पास में है, जितनी भी शर्तें होती है वो सभी ये डॉक्यूमेंट्स अगर दिखा रहे हैं, तो ऐसे में जब प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो इनका कहना है कि प्रतिबंध टोटो पे लगाया गया है, ऑटो पे नहीं लगाया गया है, और ये ई ऑटो है और इनकी संख्या भी काफी कम बताई जा रही है। टोटो का और हमारा जो ई ऑटो है इसका कॉम्बिनेशन एक नहीं होना चाहिए, ये अलग चीज़ है, ये व्हीकल हमारा कॉमर्शियल अलग है और टोटो अलग है, ये सेम नहीं है। अभी बीजेपी जो प्रेसिडेंट उसको भी ज्ञापन दे के आए क्या? हम लोग ने हाँ अरुण मंडल जी था, क्या बोले अरुण मंडल? उनसे बात किया तो उन्होंने ध्यान से हम लोगों को बात सुना, विथ कॉम्पैशनेट वो सुने हैं, सुनकर हम लोगों को बोले हैं कि हम लोग ये जो है इसको रिसीव करके दिए हैं और बोले कि जे पुट इट इन द फाइल, हम लोग कलकत्ता जा रहा है, कलकत्ता जाकर आप लोगों को बात डिस्कस करेंगे। क्या बोले? सबसे बड़ा बात है क्या, मेरा नाम है राजीव दास, सबसे बड़ा बात है क्या, जो भी नया डीसीपी का जो भी आ रहा है उनको पता नहीं है टोटो क्या है और ई ऑटो क्या है, फर्स्ट। सेकंड बात है सिलीगुड़ी में एक टोकर निकला 7-1 जो बिन्नागुड़ी परमिट है वो भी इधर घुस जा रहा है, 7-6 है नक्सलबाड़ी खोटीबाड़ी परमिट वो भी इधर घुस जा रहा है, तो इसलिए ये लोग सोच रहा है ये टोटो है, एक्चुअली नहीं है। 7-3 ओनली फॉर 61 गाड़ी, हम लोग शोरूम में गए थे, ठीक है 61 गाड़ी, और ये सिलीगुड़ी सब डिवीजन का परमिट है, बकाया 28 तक इसका परमिट का वैलिड है, 28 तक परमिट का वैल्यू है, M41 में आ रहा है 28-27 तक परमिट का वैल्यू है सिलीगुड़ी सब डिवीजन। तो आप कैसे करके ये नहीं कर रहे? नहीं, जहाँ हम लोग गए हैं सब लोग ने हम लोग को हेल्प किया है। देखिए हम आपको दिखा देते हैं, गाड़ी में भी अंतर है, ये गाड़ी है ई ऑटो और इसका बिल्कुल ऑटो जैसा ही सेम है, ऑटो की तरह यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, टोटो की तरह यहाँ पर नहीं है। जैसे ऑटो में 3 आदमी बैठ सकते हैं, पीछे सिर्फ 3 आदमी की यहाँ व्यवस्था है और इसकी व्यवस्था भी उसी तरह से, एक तरफ गेट भी है, तो इसको ई ऑटो कहा जाता है।
और ई ऑटो में ये जितने भी मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जो मापदंड होते हैं वो सारे के सारे इनके पास है। ड्राइविंग लाइसेंस, हाई स्पीड गाड़ी, हाई स्पीड गाड़ी, कितनी हाई स्पीड? स्पीड, ये 65 का है, 65 का गाड़ी है। जैसे तेल वाला ऑटो चलता जी है, जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। कैपेसिटी भी एकदम ऑटो जैसे ही है। देखिए यहाँ पे एक पैसेंजर 2 और यहाँ पे 3, वही कैपेसिटी है जो ऑटो में है, 3+1 ऑटो वाला ही है मतलब एकदम। एकदम। अब उसमें देखिए वही तो रिप्लेस किया, पेट्रोल रिप्लेस किया। तो जब आप लोग क्या चाहते हैं, डिमांड क्या आप लोग? हम लोग का डिमांड यही है जो हम लोग को रास्ता में चलने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, हम लोग को चलने दिया जाए रास्ता में। ई ऑटो है, मान्यता तो है ही आपको। मान्यता नहीं है, वो लोग तो डिनाई कर रहा है। वो लोग बोल रहे हैं ये ई ऑटो है, ई रिक्शा है, ये ई ऑटो नहीं है। ऑटो में रिक्शा बोल रहे हैं वो लोग ई रिक्शा बोल रहा है, तो हम लोग आप लोग बताइए जाके। बोल रहे हैं ना, वो तो नहीं सुनने से क्या करेंगे। हम लोग को कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं। हम लोग बात करने के बाद भी हम लोग को कोई बात नहीं सुन रहे हैं। हम लोग को टोटो में मिक्स कर दे रहे हैं, समझे? हम लोग को टोटो में मिक्स कर दे रहे हैं। रास्ते में तो सुनिए नहीं देगा, जस्ट ऐसा दिखा गाड़ी भी देगा। महंगा होगा, बहुत महंगा है महिंद्रा का है ना ये गाड़ी? जी बिल्कुल। 5 प्लस 1 लाख का है, 6 लाख का है। वो 1 लाख में आता है, वो चाइनीज वाला। जी यार 6 लाख का प्लस 5 लाख का गाड़ी है ये, 5 लाख का गाड़ी, 5 लाख का गाड़ी है फाइनेंस में। 5 लाख की गाड़ी लाके एक जो मध्यम वर्गीय लोग हैं अपने परिवार को चलाते हैं, और ऐसे में 5 लाख लगा के बैठ करके उसकी EMI देनी है इनको। वैसे में अगर इनकी गाड़ी अगर बंद हो जाएगी तो ये परिवार जो है 73 परिवार जो है ये कहाँ जाएंगे, ये सवाल उठता है। और दूसरी बात ये है कि इनकी हम जो मान रहे हैं, प्रशासन अपनी जगह अपने अनुसार वो काम कर रहा है, प्रशासन की अपनी मजबूरियां है, अपने काम करने का तरीका है। लेकिन बात अगर इनकी माने तो ये भी जायज रखते हैं कि भाई जब इनके पास में लाइसेंस है, इनके पास में रोड टैक्स है, ये परमिट इनके पास में है, और जो भी एक जो फिटनेस है वो भी सारे जो कागजात होने चाहिए वो सारे इनके पास में है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं थोड़ी भूल के कारण, क्योंकि भेड़ चाल में इनको भी टोटो समझ लिया गया हो, शायद इसीलिए इन्हें बंद फिलहाल करके रखा हुआ है या इन पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो ऐसे में इनकी डिमांड यही है कि प्रशासन इस बात को संज्ञान में ले, प्रशासन पूरी कागजों की जानकारी ले, और साथ ही जो ऑटो पेट्रोल ऑटो अबाध रूप से चल रहे हैं तो ठीक उसी तरह से ये भी ऑटो है। और एक अच्छा पहलू तो ये भी है कि इनसे तो प्रदूषण भी नहीं होने वाला है, ऑलरेडी इन्हें ग्रीन ये मिला हुआ है तो इससे प्रदूषण भी नहीं होगा। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है, इनकी डिमांड है कि प्रशासन इस बात पे ध्यान दे और ये वीडियो प्रशासन तक पहुंचे। इन्होंने आज इसके लिए DCP साहब को भी ज्ञापन दिया, अपनी मजबूरियां और अपने जो कागजात हैं वो सारे दिखाए, और साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है, क्या नाम बताया आपने? अरुण मंडल।